ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز صدر اجلاس، معلمات اور معلمین اور عزیز بچوں، بڑی ہی خوشی کی بات ہے اور بڑی خوشی کا موقع ہے. ایک اور مرتبہ، دوسری مرتبہ ایک چھوٹا سا سوال جواب کی شکل میں ایک کوئز مسابقہ رکھا گیا ہے بچوں کے درمیان. یہ سوال جواب دین آؤ دین سیکھیں مولانا ابو زید ضمیر ان کی کتاب سے چند اسباق کو، چند سوالات کو بچوں کو دیے گئے تھے. انہی سوال جواب کو بچے مظاہرے کے طور پر کوئز کے سوال جواب کی شکل میں مظاہرہ ظاہر کریں گے باذن اللہ. میں بلا کسی تاخیر سب سے پہلے اس بزم کے آغاز کے لیے سید زید بن ابو الکلام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں قرات سے اس بزم کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. السلام علیکم. سب سے پہلے مظاہرہ دکھائیں گے جی شافیہ اور دی فائزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ کا ایک ہی نام ہے یا بہت سارے؟ اللہ کے بہت سارے نام ہیں. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا نام قرآن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد ثانیہ اسم مرزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے دین سکھانے کے لیے کون آئے؟ اللہ کی طرف سے دین سکھانے کے لیے نبی اور رسول آئے. سب سے پہلے نبی کون تھے؟ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے. سب سے آخری نبی کون تھے؟ سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صرف اللہ کی عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرنے کو توحید کہتے ہیں. کیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے کو شرک کہتے ہیں. اللہ کے پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. ہمیں کس چیز کے مطابق جینا چاہیے؟ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق جینا چاہیے. اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے ماننے والوں کو مسلم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद के हनीफ इल्साई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को क्या कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहते हैं। सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबा कौन थे? सबसे पहले ईमान लाने वाले साहब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून कौन थी? सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल नबी किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम आमिना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किस चाचा ने की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश चाचा अबू तालिब ने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद ये मर्शिया ये मशीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के पैगाम को नबियों तक कौन लाता है? अल्लाह के पैगाम को नबियों तक फरिश्ता लाता है। पैगाम लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? पैगाम लाने वाले फरिश्ते का नाम जिब्राइल है। फरिश्ते किस चीज से बने हैं? फरिश्ते नूर से बने हैं। जिन और शैतान किस चीज से बने हैं? जिन और शैतान आग से बने हैं। सबसे पहले इंसान कौन थे? सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज से बनाया? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस उम्र में नाजिल नबी हुई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई। सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? सबसे पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम कुरैश था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम कुरैश था। बैतुल्लाह किसको कहते हैं? बैतुल्लाह काबे को कहते हैं। काबा किस मस्जिद में है? काबा मस्जिद हराम में है। सऊदी अरब के किस शहर में काबा है? सऊदी अरब के शहर मक्का में काबा है। हम किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? हम काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद बी मुबशिरा इल शाफी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी थी। कुरान किस ज़बान में नाजिल हुआ? कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के रसूल थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के रसूल नहीं थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए रसूल बनाकर भेजे गए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया वालों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। किस नबी ने अपनी बीवी और बेटे को मक्का में बसाया था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बेटे को मक्का में बसाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस बीवी को मक्का में बसाया था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजिरा अलैहिस्सलाम को मक्का में बसाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने किस बेटे को मक्का में बसाया था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में बसाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के नाम क्या हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे या इसहाक की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिन क्या था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिन इस्लाम था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद यम कैफ यसरिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरब के लोग किस बुराई में मुब्तला थे? अरब के लोग शिर्क के बुराई में मुब्तला थे। लोगों को दीन की तरफ बुलाने को क्या कहते हैं? लोगों को दीन की तरफ बुलाने को दावत दीन कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किस चीज़ की दावत दी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तौहीद की दावत दी। रसूल के बातों को यकीन करने और उसको मानने लोगों को क्या कहते हैं? रसूल के बातों को यकीन करके उसको मान लेने को तो ईमान कहते हैं। जो शख्स ईमान लाता है इसको क्या कहते हैं? जो शख्स ईमान लाता है उसको मोमिन कहते हैं। दिन के बातों को इनकार करने को क्या कहते हैं? दिन के बातों को इनकार करने को कुफ्र कहते हैं। जो शख्स दिन के बातों को इनकार करे इसको क्या कहते हैं? जो शख्स दिन के बातों को इनकार करे इसको काफिर कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सी मुख्तार जी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के में क्या किया? काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के में बहुत सताया। मक्का छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए? मक्का छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए। मक्का छोड़कर मदीने जाने को क्या कहते हैं? मक्का छोड़कर मदीना जाने को हिजरत कहते हैं। हिजरत करने वाले सहाबी को क्या कहते हैं? हिजरत करने वाले सहाबी को मुहाजिर सहाबी कहते हैं। मदीने के सहाबी को क्या कहते हैं? मदीने के सहाबी को अंसारी सहाबी कहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए कौन मुसलमान हुए थे? सिर्फ दिखावे के लिए मुनाफिक मुसलमान हुए थे। मदीने में मुसलमानों के अलावा और कौन रहते थे? मदीने में मुसलमानों के अलावा यहूद और नसारा रहते थे। यहूद किस नबी के पैरवी का दावा करते थे? यहूद मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी का दावा करते थे। नसारा किस नबी के पैरवी का दावा करते थे? नसारा ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी का दावा करते थे। सारे नबियों के सरदार कौन है? सारे नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे उम्मी कहते हैं। किस नबी को अल्लाह ताला ने उम्मी कहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उम्मी कहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई। दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई। हमें किस नबी की पैरवी करनी चाहिए? हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। हमें किस किताब की पैरवी करनी चाहिए? हमें कुरान मजीद की पैरवी करनी चाहिए। कुरान के साथ और किस चीज़ की पैरवी ज़रूरी है? कुरान के साथ सुन्नत की पैरवी ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रास्ते को क्या कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदर इजलास, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और अज़ीज़ बच्चों, ये एक दूसरा मुसाबक़ा था हमारा। पहला मुसाबक़ा तकरीबन 1 महीना पहले हुआ था। ये दूसरा मुसाबक़ा है। ये इल्मी हमारे मकतब में देखो तालीम होती है, तालीम के साथ तरबियत होती है। हर संडे को तरबियत होती है। फिर तालीम, दुआएं और नूरानी क़ैदा, नाज़िरा क़ुरान और हिफ्ज़ क़ुरान, ये तालीम है। ये सवाल जवाब की शक्ल, दीन की बुनियादी बातें, मोटी मोटी बातें, एकदम बेसिक बातें हम में से हर इंसान को मालूम होना चाहिए। और ये सीखने का वक्त, ये बचपन का मरहला है। इसमें दीन की मोटी मोटी बातें, बुनियादी बातें, अल्लाह का तारुफ़, अंबिया का तारुफ़, दीन का तारुफ़, ये तमाम बातें बचपन में ही सीखी जाती हैं और बचपन में ही सीखना चाहिए। ये अल्लाह के फज़ल व करम से ये इस साल एक मुसाबक़े की शक्ल में, सवाल जवाब की शक्ल में, क्विज़ की शक्ल में एक इस साल शुरू किए हैं। एक मुसाबक़ा हुआ और दूसरा मुसाबक़ा है। इंशाअल्लाह इस तरह के मुसाबक़े हर महीने में 1 मरतबा या 2 महीने में 1 मरतबा ज़रूर होंगे। इसमें हर बच्चा, हर तालिबा और हर बच्चा, हर लड़की इसमें हिस्सा लेना है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और जो भी आपके मुअल्लिमात या मुअल्लिमीन पढ़ाते हैं, इसको एकदम दिलचस्पी से इसको याद करने की कोशिश करना और अच्छी तरह इसको जहन में कर लेना, जहन में बिठा लेना। ये बातें हैं ना, दूसरों को बोलना है। ये बातें दूसरों बड़ों को मालूम नहीं होती हैं। बड़े लोगों, घर वालों को, गांव वालों को, कई लोगों को ये बातें मालूम नहीं हैं। ये बातें अपने घर वालों को बताना, ये सिखाते हैं, ये बोलते हैं। दीन इसको कहते हैं, रसूल इसको कहते हैं, किताबें इनको कहते हैं, कुरान इसको कहते हैं, इंजील किस पर नाजिल हुई। ये दीन की बुनियादी बातें अपने घरों में बताना आप लोगों। जी, तालीम सीखने का मकसद क्या है? आपकी तरबियत होना। आपकी तरबियत के साथ ये घर में आप अपने माँ बाप को भी बताना ये बातें। आपके माँ बाप को नहीं मालूम ये बातें सब।
تو یہاں پر بڑی بات زیادہ اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے انہی باتوں کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہاں تعلیم اور تربیت کے ساتھ تعلیم اور تربیت دونوں لازم ہیں ہمارے پاس. اس کے لیے آپ کے لیے پہلی بات محنت کرنا ہے, ہر دن مکتب کو آنا ہے, اس میں سستی نہیں ہونا, کسی طرح کی سستی نہیں ہونا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سر میں درد تھا یا کسی کام تھا یا جھوٹ بول کر چھٹی مانگنا, فون کرنے لگانا اپنے والدین سے, یہ ایک اچھے طالب علم کی علامت نہیں ہے, یہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی علامت نہیں ہے. ایک اچھے طالب علم کیا ہوتا ہے, کیسا بھی اس کو کیسا بھی کام ہو یا کچھ بھی ہو جائے گھر میں, وہ پڑھنے کے لیے ضرور آتا ہے. ایک اچھا طالب علم یہ سوچتا ہے اگر میں نہ جاؤں تو میرا سبق چلے جائے گا, اگر نہ جاؤں تو ایک دن کی دعا چلی جائے گی, اگر نہ جاؤں تو دین کی باتیں نہیں ملیں گی مجھے. یہ طالب علم کی سوچ ہوتی ہے. تو ہمیں سے جتنے بھی طلباء طالبات ہیں ان کی یہ سوچ ہونا چاہیے, کسی بھی دن کوئی بھی دن 1 گھنٹہ, صبح میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے, شام میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے, 1 گھنٹے کے لیے چھٹی پوچھنا ایک اچھی بات نہیں ہے. ہاں چھٹی پوچھ سکتے ہیں اگر زیادہ آپ کو کچھ ضرورت ہے یا بیمار ہیں, ایسے حالت میں چھٹی پوچھ سکتے ہیں. خالی بھی نہیں ماں باپ کو جھوٹ بولنے لگانا, ایسا کچھ کام ہے نہیں جاتا میں کچھ بول فون کر کے امیر مول صاحب کو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے اگر چھٹی پوچھ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ مکتب آنے کی کوشش کریں. اسباق سبقوں کو جو آپ کی معلمات معلمین پڑھاتے ہیں دلچسپی سے پڑھیں. اگر آپ کو بطور سزا کچھ کرتے ہیں تو اس کو سنبھالیں, ہماری بھلائی کے لیے کہتے ہیں, ہماری بھلائی کے لیے سزا دیتے ہیں, ہماری بھلائی کے لیے کھڑا کرتے ہیں, تو یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. تو آ کر محنت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص, ہم معلمات اور معلمین میں اخلاص پیدا فرمائے, اور جتنے بھی اس مکتب کو چلانے کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت, ان کی کمائی میں برکت عطا فرما. اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اللہ ان کو نظر بد سے بچا. اللہ ہمارے مکتب کو نظر بد سے بچا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں دلچسپی پیدا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں دین کی لگن پیدا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں دین کی تڑپ پیدا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد میں بصد احترام صدر اجلاس سے درخواست کرتا ہوں آئے اپنی قیمتی خطاب سے ہمارے بچوں کو ممنون کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محترم اساتذہ کرام اور قابل احترام معلمات اور پیارے بچوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی وحی نازل کیا؟ کون سی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. کیا معنی اس کے؟ پڑھو. کیا ہے؟ پڑھو. دنیا کے اندر نمبر 1 کام دین سیکھنا ہے. کون سا کام ہے؟ نمبر 1 کام دین سیکھنا. مطلب قرآن سیکھنا, قاعدہ سیکھنا, ناظرہ پڑھنا, حفظ کرنا, دعائیں یاد کرنا, حدیثیں یاد کرنا, سوال جواب یاد کرنا. یہ دین سیکھنے کا کام دنیا کے اندر سب سے نمبر 1 کام ہے. باقی کے پورے کام اس کے بعد. پہلے قرآن پڑھنا سیکھنا, پہلے دین کی باتیں جاننا, پہلے نماز کا طریقہ جاننا, پہلے دعائیں جاننا, یہ نمبر 1 کام ہے. اور بچپن میں ہم لوگ جو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ مرے تک ہم وہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. کیونکہ بچپن میں ہم جو بھی یاد کرتے ہیں وہ ذہن میں بات جب بیٹھ جاتی ہے تو بڑے ہونے کے بعد ہم جوان ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, پھر انتقال ہو جائیں گے, موت تک بھی ہم کو دعائیں یاد رہیں گی, ہم کو وہ باتیں یاد رہیں گی. ہم پوری زندگی وہ دعائیں پڑھتے رہیں گے, ثواب کماتے رہیں گے, نیکیاں لوٹتے رہیں گے اور جنت سے قریب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کو راضی کرتے رہیں گے. دنیا کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے
1,00,000 سے بھی بڑھ کر نبی اور رسول آئے، تقریباً 1,00,000۔ ان میں سے 5 نبی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کون کون ہو؟ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء سب سے مشہور ہیں دین کے راستے میں، دین کے کاموں میں ان کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ کون کون ہیں وہ 5 انبیاء؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبیوں میں سے ابھی میں سن رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب ہوئے، اور تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جواب ہوئے سیرت کے، اور قرآن کے سوال جواب ہوئے۔ یہ سارے سوال جواب دین کے بہت امپورٹنٹ معلومات ہیں۔ یہ معلومات بچپن میں یاد نہیں کر لیے تو بڑے ہونے کے بعد یاد نہیں ہوتے، کیونکہ جب پودا چھوٹا ہوتا ہے، جھاڑ چھوٹا ہوتا ہے، جیسا ہل ہے ویسا ہلتا، اکھاڑے تو اکھڑتا، ہلے تو ہلتا، ادھر جھکاؤ جھکتا، ادھر جھکاؤ جھکتا۔ کب؟ جب جھاڑ چھوٹا رہتا۔ جھاڑ بڑا ہونے کے بعد ہلتا ہلے تو ہمیں ہل جاتی، جھاڑ نہیں ہلتا۔ اس کو توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ جھکانے کے لیے کلانی لوڑے بولنا پڑتا، آرا لو کاٹنے واسطے، کیوں؟ سخت ہو گیا۔ ویسا ہی بچپن میں سوال جواب یاد نہیں کرے، عربی نہیں پڑھے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھے، قاعدہ پڑھنا نہیں سیکھے، بڑے ہونے کے بعد نہیں پڑھنے آتا، زندگی پوری ہمیں چلی آتی، شرمانا، ڈرنا، جھجکنا، کون کیا سمجھتی، یہ خیال خالی شیطان خیال۔ شیطان کیا کرتا؟ بڑے ہونے کے بعد پڑھنے نہیں دیتا۔ اس لیے بچے جیسا پڑھتے تیزی کے ساتھ، روانی کے ساتھ، بغیر شرمائے کے، ویسے بڑے لوگ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تمہاری عمر، بچپن کی عمر، چھوٹی عمر، یہ پڑھنے کی عمر نہیں ہے۔ آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر دوسروں کو پڑھائیں گے، آپ لوگ دین پر عمل کریں گے۔ بچپن سے آپ کو معلوم ہے نماز طریقہ کیا ہے، نماز کے ارکان کتنے ہیں، فرض نمازیں کتنے آپ کو معلوم ہے، نمازوں کے نام آپ کو معلوم ہے، کون سی نماز کتنی رکعت آپ کو معلوم ہے، معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ اگر بچپن سے یاد رکھ لیے تو بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے مسجد میں آئے تو کیا پڑھنا، باہر گئے تو کیا پڑھنا، گھر میں گئے تو کیا پڑھنا، کھاتے وقت کیا پڑھنا، کھانے کے بعد کیا پڑھنا، اذان کے بعد کیا پڑھنا، نماز کی دعائیں کون سی ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کیا دعائیں پڑھنا، صبح کی دعا کیا ہے، شام کی دعائیں کیا ہیں، دودھ پینے کی دعا کیا ہے، سب معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ اس لیے کہ بچپن میں جو بھی باتیں آپ سیکھیں گے، یاد کریں گے، وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی۔ جیسا کہ ایک پتھر ہے، پتھر میں اگر آپ ڈیزائن کریں گے، پتھر میں آپ ایک نقشہ ڈالیں گے تو مٹتا کبھی نہیں مٹتا۔ وہ پتھر میں جو بھی آپ ڈیزائن کریں گے، نقشہ ڈالیں گے، وہ نہیں مٹتا۔ بارش پڑی یا دھول پڑی یا دھوپ لگی تو بھی نہیں مٹتا وہ، کہ پتھر کے اندر جو انسان ڈیزائن بناتا ہے وہ لکیر ہمیشہ باقی رہتے ہو، 100 سال گزرندے وہ چیزیں ویسی ہی رہتی۔ بچپن میں پڑھنا ویسا ہی ہے، بچپن میں یاد کریں گے، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تو بھی نہیں بھولیں گے آپ۔ اس لیے آپ دیکھو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کون سورہ ہو، کون سورہ ہے سورہ فاتحہ؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ الحمد سورہ بولتے نہیں؟ کون کون یاد کرے ہو؟ کون کون یاد کرے؟ یاد کرے بیٹھ کو، یا سن کو یاد ہو گیا؟ یاد ہو گیا نہیں سن کو؟ کون یاد کرتے نہیں بیٹھ کو؟ یاد کرنا پھر سنانا، باجی کو سنانا، مول صاحب کو سنانا، غلطیاں ویسا نہیں ہوتا کون بھی۔ نماز میں سن کو سورہ فاتحہ پکا پڑھو آتا نہیں تو بار بار سنے تو کیا ہوتا، چیز یاد ہو آتی۔ اب سوال جواب آپ لوگ پڑھ رہے، 2 بچے اگر پڑھے، سب لوگ غور سے سنیں، پھر 2 بچے پڑھے، پھر سنیں، ایسا سنتے رہے تو کیا ہے وہ چیز دماغ میں بیٹھ جاتی ہماری۔ اس لیے بچپن کی چھوٹی عمر میں زیادہ سے زیادہ سننا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ بچپن میں پڑھائی کرنا پتھر میں لکیر کھینچنے کے برابر ہے۔ پتھر میں لکیر کھینچیں گے آپ تو بڑھاپے تک آپ کو لکیر باقی رہے گی، وہ علم آپ کا باقی رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے، ہم مکتب کو آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں،
यहाँ तक वास्ते नहीं हो, अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करना। यहाँ आके आप लोग पढ़े, मस्जिद में आने की दुआ पढ़े, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़े, बाहर निकल रहे दुआ नहीं पढ़ रहे, अफसोस की बात है। सीखना भी अमल भी करना। घर में गए तो सलाम करके जाना, घर से बाहर आए सलाम करके आना, घर में खाना खा रहे हैं बिस्मिल्लाह बोल के खाना, अपने अब्बा को बोलना बिस्मिल्लाह बोलो, अम्मी को सिखाना बिस्मिल्लाह बोलो खाना खाओ, खाने के बाद दुआ पढ़ना, अम्मी को सिखाना, कुरान पढ़ने की तालीम देना, अब्बा को बोलना कुरान पढ़ना सीख लो, अम्मी को बोलना कुरान पढ़ते बैठो। हम खुद भी पढ़ना है मकतब के अंदर आकर, और अपने घर वालों को भी ये दुआएं, ये सवाल जवाब सिखाना है इंशाअल्लाह। अगर आप खुद अमल करें, खुद पढ़ लिए अमल नहीं करे तो भी बेकार है, खुद पढ़े खुद अमल करे दूसरों को नहीं बोले तो भी बेकार है। इसलिए खुद भी सीखना, खुद भी अमल करना, और अपने माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को, सबको भी सिखाना इंशाअल्लाह, तभी आपके अंदर ये फ़ायदा होगा। तीसरी बात क्या है, हम जो मकतब के लिए आते हैं, ये मकतब को आना कितना बड़ा काम है मालूम? इतना बड़ा काम है कि आप आते हैं तो आपके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, क्योंकि ये बच्चे दीन सीखने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे दुआएं पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे सीरत के, अकीदे के, ईमान के सवाल याद करने वाले बच्चे हैं। ये दीन सीखने के लिए जो भी बच्चा घर से निकलता है उसके हिसाब से ज़मीन पर चलता है वो, कि अल्लाह के हिसाब से फरिश्ते पर बिछाते हैं, वो हमको नजर नहीं आते। ये दीन सीखने वाले बच्चों का एहतराम है, दीन सीखने वाले बच्चों का ये एहतराम है, मकतब को आने वाले बच्चों का रेस्पेक्ट है। ये फरिश्ते क्या करते हैं, दीन सीखने के लिए जो बच्चे घर से निकलते हैं उनके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं। इतना ही नहीं, जो भी बच्चा अपने घर से निकलता है मकतब को आने के लिए, उसके हक में परिंदे दुआ करते। कौन दुआ करते? परिंदे दुआ करते उसके हक में, उसके हक में जानवर दुआ करते, उसके हक में आसमान की मखलूक दुआ करती, उसके हक में जमीन की मखलूक दुआ करती। क्या दुआ करती? ऐ अल्लाह तू इस बच्चे को माफ कर दे, ऐ अल्लाह तू इस बच्चे को ऊंचा दर्जा अता फरमा, दुआ करते। इतना ही नहीं, समंदर के अंदर, पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो मछलियां भी दुआ करते। किसके हक में? मकतब के बच्चों के हक में। कौन दुआ करते? मछलियां दुआ करते। मछलियां ही नहीं, सुराखों में, जमीन के सुराखों में जो चूंटियां होती हैं वो चूंटियां भी तुम्हारे हक में दुआ करते। अल्लाह अकबर। किसी बड़ी बात, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जर्रा बुखार है तो मकतब कैंसल, मंगना हो रहा है किसी का, मकतब कैंसल, अकीक़े की दावत है मकतब कैंसल, शादी को जाना है मकतब कैंसल, खाला घर को जाना है मकतब कैंसल, फुप्पू के पास जाना है मकतब कैंसल। क्या कर रहे हैं आप? फरिश्तों की, चूंटियों की, मछलियों की दुआओं को छोड़ के शादी में जा रहे हैं। आप लोग सोच के देखो, हमारा गुनाह नहीं होना फरिश्तों की दुआएं, मछलियों की दुआएं, चूंटियों की दुआएं। ये ज़मीन और आसमान की हर मखलूक कुरान पढ़ने और दीन सीखने वालों के हक़ में दुआ करते हैं। हम दुआ के हक़दार बनना इंशाअल्लाह। और जिस बच्चे के हक़ में फरिश्तों की दुआ लग गई, मछलियों की दुआ लग गई, परिंदों की दुआ लग गई, वो बच्चे की ज़िंदगी इंशाअल्लाह बदल जाती। अल्लाह बरकत देता, अल्लाह सेहत देता, बीमारियां नहीं आते, आफतें नहीं आते, मुसीबतें नहीं आते, तकलीफा नहीं आते, घर के अंदर बरकत आती, सब अच्छा बनता। और इससे बढ़ के हमारी आखिरत भी इंशाअल्लाह अच्छी बनती, और अल्लाह हमको जन्नत से नवाजता है इंशाअल्लाह। तो मेरी आपकी नसीहत ये है कि आप लोग इंशाअल्लाह मकतब की पाबंदी करो। और जो मुसाबका हुआ है यहाँ, वो मुसाबका एक मुजाहरा है, दिखाने के लिए है कि हम कैसा आगे बढ़ सकते हैं, हमको क्या क्या सवाल जवाब याद करना है, हमको क्या क्या बातें सीखना है, ये हमको सीखना चाहिए। जो आप बचपन में सीखेंगे इंशाअल्लाह आप बड़े होने के बाद नहीं पछताएंगे। आज देखो जो बड़े लोग हैं वो लोग पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। क्या बोलकर? अगर छोटे होने बड़े रहे तो अच्छा रहता था, छोटे ने मालूमात नहीं करे, कुरान पढ़ना नहीं सीखे, दुआएं नहीं सीखे तो तकलीफ होती इंसान को, इंसान शर्माता। नमाज क्या पढ़ता है इंसान अगर दुआ नहीं आई तो?
इंसान नमाज पढ़ सकता है दुआ नहीं तो? नमाज में हर एक की दुआ है, क़ियाम की दुआ अलग है, रुकू की दुआ अलग है, सजदे की दुआ अलग है, तशहुद की दुआ अलग है, सब दुआ अलग अलग है। बड़े बहुत सीख सकते हैं, उतना आसान नहीं है। इंसान बिजी हो जाता, इंसान मसरूफ़ हुआ था, काम के कामा लग जाती, इंसान को टाइम नहीं मिलता याद करने वास्ते बड़े होने के बाद। बचपन में हमको माँ बाप पालते हैं, पकाते हैं, खिलाते हैं, हमारा काम क्या? उठना, सीधा मकतब को आना है हमारा काम, नमाज पढ़ना, मकतब को आना हमारा काम है। हम फ्री हैं फ़िलहाल। तो बचपन में इस मौका हम गनीमत जानते हुए अगर हम याद करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानी होती। अल्लाह ताला हम तमाम अल्लाह ताला हमारे तलबा और तालिबात को बेहतरीन इल्म से नवाजे। अल्लाह मकतब के तलबा को तरक्कियों से मामाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़िम्मेदारान मकतब, असातिज़ाए मकतब और मुअल्लिमात और इसी तरह अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि मकतब अज़ीज़िया का दूसरा मुसाबक़ा सवाल जवाब बतारीख़ 1 अगस्त 2024 ईस्वी मुवाफ़िक़ 25 मुहर्रम 1446 हिजरी बरोज़ जुमेरात सुबह 6:45 बजे बमक़ाम मस्जिद अज़ीज़िया अहले हदीस कड़मूर ज़ेर सदारत हाफिज़ डी ज़िया रहमान उमरी हफ़िज़हुल्लाह मुनक़िद हुआ और हमारा ये मुसाबक़ा इख्तिताम पज़ीर भी हुआ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मकतब के अंदर आपको कुरान मजीद की तालीम के साथ साथ दीनी बातों से वाकिफ़ कराना और दीन की अहम जानकारी देना भी इस मकतब का असल मकसद है। तो इसी के तहत मौलाना अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह की किताब आओ दीन सीखें, आओ दीन सीखो से चंद सबकों का इंतखाब करके आपको याद कराए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा और तालिबात ने इसका बेहतरीन मुदाहरा पेश करने की कोशिश की। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन तलबा और तालिबात को मज़ीद तरक्की से नवाजे। मैं आपके सामने फ़िलहाल तक़सीमी इनामात के सिलसिले में खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि हमने पहले मुसाबक़े के अंदर भी रखा था इनामात, और इस मुसाबक़े के अंदर भी हमने इनामात मकतब की जानिब से रखने की कोशिश की है। ये छोटे से इनामात हैं और इस इनामात के सिलसिले में हमने हकम मुअल्लिमात का इंतखाब किया और उन्होंने अपने फ़ैसलों का इजहार नंबरात के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। तो लिहाजा मैं बिला ताख़िर इनामात की तक़सीम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो लिहाजा मैं सदर मोहतरम से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने बदस्त इनामात तक़सीम फरमाएँ। पहला इनाम हासिल कर रही हैं सबक नंबर 5 से बी मुबश्शिरा और यल शाफिया। ऊपर के एक पीस दे, हाँ दोनों एक पीस। दूसरा इनाम हासिल कर रही हैं वी हिना परवीन PS रुमाना। तीसरा इनाम हासिल कर रही हैं P सानिया यस उम्मे मिर्ज़ाना। हमारे तमाम तलबा तालिबात ने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि उन तमाम को भी एक छोटा सा इनाम तकसीम किया जाए। तो आए तरतीब से अपना इनाम हासिल करें। जी शाफिया, डी फैज़ा, यम अर्शिया, यम शीमा फलक, यस ज़ैद बिन अब्दुल कलाम, के हनीफ, यल साइद, यम कैफ, यस रिहान, सी मुख्तियार, जी नासिर। अल्हम्दुलिल्लाह इनामात भी तक़सीम हो चुके हैं। अब लिहाजा अब मैं मजलिस के इस मुसाबक़े के बर्खास्त का ऐलान करने से पहले सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ कि जिसकी तौफ़ीक़ और इनायत से हमारा ये मुसाबक़ा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मकतब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। और इसी तरह मैं तमाम मुअल्लिमात का, असातिज़ा का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी तरह मैं खुसूसन सदर मोहतरम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने के बावजूद भी
ہماری اس دعوت پر لبیک کہا، اور ہمارے طلباء و طالبات، ہم اساتذہ اور ہماری معلمات کی ہمت افزائی کی خاطر یہاں پر تشریف لائے، تو لہٰذا میں ایک اور مرتبہ صدر محترم کا، اساتذہ کرام اور معلمات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آپ لوگ چلیے۔